Hello, dear students. How are you all? I hope you all are fine and healthy. So, welcome back to your science classes. So, students, in our last class, we have learned about nutrition in plants, right? हम लोगों ने देखा था कि plants अपना nutrition जो है वो कैसे obtain कर पाते हैं. We have learned about autotrophic mode of nutrition, parasitic, symbiotic, and इस तरह से हम लोगों ने बहुत सारे nutritions के बारे में पढ़ा था. So I hope you all have revised that chapter, and now in today's class we are going to start with the new chapter, and that is nutrition in animal. So let's see what all things we are going to learn in this chapter. So first of all, recall the basic concept of nutrition in animals. So सबसे पहले तो हम लोग basic concept के बारे में ही पढ़ेंगे जो कि आप सब लोग अपनी previous classes में already पढ़ चुके हो. Then next we have explain different ways through which animals obtain and consume food. So अब इसके बाद हम लोग कुछ different तरीके देखने वाले हैं जिससे animals जो है वो अपना food obtain करते हैं and उनको consume करते हैं यानी कि उनको खाते भी है. Describe how humans obtain and utilize their food. इसके बाद हम लोग ये समझने वाले हैं कि किस तरह से humans जो है वो अपना खाना खाते हैं and उनको utilize करते हैं या फिर कैसे उनको सबसे पहले obtain करते हैं. Then describe the structure and functions of human digestive system. इसके बाद हम लोग ये भी देखने वाले हैं कि हमारे human digestive system का structure क्या है and उनके functions क्या है. Analyze the importance and functions of different types of teeth in humans. इसके बाद हम लोग ये भी देखने वाले हैं कि importance क्या है और different functions क्या है हमारे teeth के जो कि humans के अंदर हमको देखने को मिलते हैं. Then explain the process of digestion in herbivores. इसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि herbivores के अंदर digestion का process जो है वो क्या होता है. Explain the process of nutrition in unicellular organisms like amoeba. And इसके बाद हम लोग हमारा amoeba जो कि एक unicellular organism है उसके अंदर भी digestion को देखने वाले हैं. So बच्चों ये chapter बहुत ज़्यादा interesting होने वाला है क्योंकि इसमें हम लोग बहुत सारी ऐसी चीजें पढ़ेंगे जो कि हमसे ही related है, right? So before starting with the chapter, let's start with boot up. So observe the given picture of an important body system. So बच्चों यहाँ पर हमको हमारे body system की एक important picture दे रखी है, right? So हमारा body system का ये कौन सा important system है? So I hope आप सब लोगों ने इसको recognize कर लिया होगा. This is our digestive system, right? So name the physiological system shown in the given image. So हमको यहाँ पर कौन सा system जो है वो show कर रखा है? So this is our digestive system. So now आप सब लोग जो है वो यहाँ पर क्या लिखोगे? You all are going to write over here that this is digestive system. So this is our digestive system. Now students, next is, do you think this is a vital body system? Explain why. So now बच्चों क्या आप लोगों को लगता है कि ये सिस्टम जो है वो हमारे लिए vital है, हमारे लिए जरूरी है, and ऐसा क्यों? So yes बच्चों, this system is vital for us because इसी सिस्टम की वजह से हम लोग क्या कर पाते हैं, हमारे फूड को ब्रेक डाउन कर पाते हैं, उसके अंदर से न्यूट्रिएंट्स जो है वो एब्जॉर्ब कर पाते हैं एंड हमारी बॉडी को एनर्जी एंड ग्रोथ प्रोवाइड करवा पाते हैं. So you all are going to write yes. This is a vital system as it breaks down our food and provides us with nutrients. सो ऑलराइट बच्चों, आपको इस तरह से यहाँ पर अपना जो इम्पोर्टेंस है इस सिस्टम का उसको एक्सप्लेन करना है. देन हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है, हैव यू एवर फेस्ड एनी ट्रबल रिलेटेड टू दिस सिस्टम? सो बच्चों, क्या आप लोगों को कभी भी कोई परेशानी हुई है? सो नाउ बच्चों, नेक्स्ट हमसे पूछा जा रहा है, हैव यू एवर फेस्ड एनी ट्रबल रिलेटेड टू दिस सिस्टम? सो आप लोगों को बताना है कि क्या कभी भी आपको इस सिस्टम के अंदर कुछ भी गड़बड़ जो है वो लगी है अपनी बॉडी के अंदर. सो नाउ यू हैव टू एक्सप्लेन दैट. सो
Let's start with our chapter. So in the previous chapter, we have learned that green plants make their own food through photosynthesis. So बच्चों हम लोगों ने हमारे previous chapter में already ये पढ़ लिया है कि green plants क्या करते हैं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं, right? And कौन से process से? photosynthesis से. बट एनिमल्स अपना खाना खुद नहीं बना पाते. बट आप लोग बोलोगे कि नहीं, हमारा खाना तो हमारी मम्मी किचन में प्रिपेयर करती है, सो इसका मतलब हम लोग भी तो अपना खाना खुद बना पा रहे हैं. बट स्टूडेंट्स, यहाँ पे खाना प्रिपेयर करना अलग है एंड खाने को प्रोड्यूस करना इज डिफरेंट. सो हम लोग यहाँ पर इस चीज के बारे में बात कर रहे हैं कि एनिमल्स अपना खाना खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकते, राइट? प्लांट्स तो अपना खाना खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं, बट क्या हमारी बॉडी के अंदर ऐसा कोई फंक्शन हो रहा है जिससे हम अपने खाने को खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं? नो. सो इसलिए हम लोग यहाँ पर बोलते हैं कि एनिमल्स अपना खाना खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकते. सो अब एनिमल्स करते क्या है, ये अपना फूड जो है वो प्लांट से ऑब्टेन करते हैं. सो सम एनिमल्स ईट प्लांट्स एंड देयर प्रोडक्ट्स डायरेक्टली, व्हाइल अदर्स ईट एनिमल्स दैट फीड ऑन प्लांट्स. सो बच्चों, कुछ एनिमल्स तो क्या करते हैं, वो डायरेक्टली जाकर प्लांट्स को खा लेते हैं या फिर उनसे डायरेक्टली अपना फूड जो है वो ऑब्टेन कर लेते हैं. बट कुछ एनिमल्स क्या करते हैं कि वो प्लांट्स के ऊपर फीड करते हैं जाकर, जिससे क्या होता है कि वो डायरेक्टली प्लांट्स को ही जाकर खा लेते हैं. सो एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. सो हम लोग ये बोल सकते हैं कि एनिमल्स क्या कर रहे हैं, वो फूड के ऊपर डिपेंडेंट है, वो प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है अपने फूड के लिए, जो कि ये लोग डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली प्लांट से ऑब्टेन कर सकते हैं. डायरेक्टली कैसे, कि डायरेक्टली जाकर खा लिया, एंड इनडायरेक्टली का मतलब क्या है कि वो प्लांट प्रोडक्ट्स के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट है. Now next we have nutrition in animals. So food is required for the survival and growth of all the organisms. So हम लोगों को इतना तो समझ आ गया होगा कि हम सबको खाना जो है वो चाहिए चाहिए. एंड क्यों चाहिए? ताकि हम लोग ग्रो कर सके, हम लोग सर्वाइव कर सके. So nutrition is the process by which organisms take in food, absorb essential nutrients, utilize them for growth, energy and maintenance of life. So हम लोग क्या बोल सकते हैं कि न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद बनाते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज करते हैं अपनी ग्रोथ के लिए, एंड देन वो एनर्जी डिराइव करते हैं एंड अपनी लाइफ को मेंटेन करते हैं. सो बेसिकली न्यूट्रिशन है क्या? न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम फूड इंजेस्ट कर रहे हैं, अपनी बॉडी के अंदर ले रहे हैं, एंड उस फूड को ब्रेक डाउन कर उसके अंदर से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करवा रहे हैं. अब इस पूरे न्यूट्रिशन के प्रोसेस में हमने जो ये वन लाइन डेफिनेशन पढ़ी, इस पूरे प्रोसेस के अंदर बहुत सारे स्टेप्स होते हैं. वी हैव फूड इनटेक, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जो कि कन्वर्ट करते हैं न्यूट्रिएंट्स को यूजेबल एनर्जी में. अब हम लोग स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन को ही पढ़ने वाले हैं. द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स इन्वॉल्व्स 5 की स्टेप्स. हमारे पास एनिमल्स के न्यूट्रिशन में 5 की स्टेप्स है. वो क्या है? वी हैव इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन. सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंजेशन की. इट इंक्लूड्स द इनटेक ऑफ फूड इनटू द बॉडी. इंजेशन का मतलब क्या है कि हम फूड को हमारी बॉडी के अंदर लेंगे, ठीक है. देन नेक्स्ट वी हैव डाइजेशन. डाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जो फूड हमने हमारी बॉडी के अंदर लिया, अब उसको हम क्या करने वाले हैं, हम उसको ब्रेक डाउन करने वाले हैं स्मॉलर एंड एब्जॉर्बेबल कंपोनेंट्स के अंदर. Food contains components like carbohydrates, which are complex substances. Our bodies cannot use these complex substances directly, so they are broken down into simpler substances. This process of breaking down complex food components into simpler ones is called digestion. सुना बच्चों, हमारे फूड के अंदर ना बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, हम लोगों ने इनके बारे में पढ़ा भी था. वी हैव कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, एंड ये सारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट ये क्या है? ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस है, यानी कि ये बहुत ज्यादा मुश्किल है ब्रेक उनको यूज करने के लिए. अब हमारी बॉडी करती क्या है? हमारी बॉडी इन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ती जाती है, सो दैट अब इन सिंपलर सब्सटेंसेस को हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर सके. डाइजेशन है क्या? डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलर सब्सटेंसेस के अंदर तोड़ा जाता है. नाउ नेक्स्ट वी हैव एब्जॉर्प्शन. इट इज द प्रोसेस बाय व्हिच डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स आर टेकन अप इन द ब्लड स्ट्रीम. ना बच्चों, डाइजेशन प्रोसेस तक में हमने क्या देखा कि कॉम्प्लेक्स जो है वो सिंपलर में टूट गया. अब ये सिंपलर में टूट तो गया, इसके बाद क्या होगा कि ये सिंपलर सब्सटेंसेस अब हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करेगी, एंड ये एब्जॉर्ब करके हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर जाएगा, सो दैट अब ये न्यूट्रिएंट्स जो है वो हमारे हर बॉडी पार्ट तक पहुंच सके.
Now, bachcho, next we have assimilation. So it is the utilization of absorbed nutrients by the body cells for energy, growth and repair. So बच्चों absorption तक क्या हुआ कि हमारा जो digested nutrients था उनको body के अंदर absorb करा गया and blood stream के through यानी कि blood के through वो different body parts तक भेजा गया. अब हमारे पास next step है assimilation. So assimilation में क्या होता है कि हमारी body के जो cells है वो क्या करेंगे, इन nutrients को utilize करेंगे, इनको use करेंगे जिससे कि इनके हमारी बॉडी के जो सेल्स है वो ग्रो हो सके, उनको एनर्जी मिल सके. देन लास्ट स्टेप वी हैव इजेशन. So it includes the elimination of undigestible and waste materials from the body. The fecal matter is expelled from the body through the anus at regular intervals. Since the undigested waste that remains there even after the digestion is called feces, the process of egestion is also referred to as defecation. सुना बच्चों, अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, इजेशन. एंड हम लोग जो भी फूड मटेरियल खाते हैं उनमें से हमारे पास कुछ ऐसे मतलब उसी फूड मटेरियल में हमारे पास कुछ सब्सटेंसेस अनडाइजेस्ट रह जाते हैं, हमारे पास कुछ वेस्ट मटेरियल्स होते हैं जिनका हमारी बॉडी में कोई काम नहीं होता है. सो अब उनको क्या किया जाता है, उस अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल को या वेस्ट मटेरियल को हमारी बॉडी से रेगुलर इंटरवल्स पे बाहर निकाला जाता है. एंड वो कैसे बाहर निकलता है, थ्रू एनस. सो अब ये सारा का सारा जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है, ये वेस्ट मटेरियल है, इनको बोला क्या जाता है, इनको फीसेस बोला जाता है. एंड ये फीसेस हमारी बॉडी से एक्सपेल आउट होते हैं एनस के थ्रू. ऑल्सो हम लोग प्रोसेस ऑफ इजेशन को एक और नाम से बोल सकते हैं, वो क्या होता है, डेफिकेशन. सो ना बच्चों, ये हमारे पास 5 स्टेप्स थे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के. फर्स्ट इज इंजेशन, टेकिंग इन ऑफ फूड. देन सेकंड इज डाइजेशन यानी कि ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस. थर्ड वी हैव एब्जॉर्प्शन. सो अब इन सिंपलर सब्सटेंसेस को हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करवाती है इन ब्लड स्ट्रीम्स थ्रू विच द ब्लड स्ट्रीम टेक्स ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी. देन फोर्थ वी हैव एसिमिलेशन. सो एसिमिलेशन में हमारे बॉडी के सेल्स क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं एंड इन न्यूट्रिएंट्स को यूज करते हैं फॉर बिल्डिंग, फॉर एनर्जी, फॉर रिपेयर. देन फिफ्थ वी हैव इजेशन. एंड इजेशन में क्या होता है, वट एवर द वेस्ट मटीरियल एंड अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स प्रेजेंट इन आवर फूड उनको हमारी बॉडी से रिमूव आउट करवाया जाता है थ्रू एनस. एंड इस प्रोसेस को ही क्या बोला जाता है, डेफिकेशन या फिर इजेशन. सो नाउ बच्चों, अब हमारे पास है डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड. सो अब हम लोग देखेंगे किस किस तरीके से हमारे डिफरेंट एनिमल्स जो है वो टेक इन कर सकते हैं फूड को, यानी कि इंजेस्ट कर सकते हैं. सो different animals have following methods for taking in food. First we have hydra uses tentacles to capture and ingest food. So सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हाइड्रा की. एंड हाइड्रा क्या करता है, उसके पास कुछ टेंटिकल्स होते हैं. सो इन टेंटिकल्स के यूज से ही हाइड्रा अपने फूड को कैप्चर करता है एंड उसको इंजेस्ट करता है. देन वी हैव पैरामीशियम. सो पैरामीशियम के पास ना सीलियाज होते हैं. सीलियाज क्या होते हैं, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं. सो ये पैरामीशियम की बॉडी पे सीलियाज होते हैं जो कि इन फूड आइटम को पैरामीशियम के ओरल ग्रूव तक लेकर आता है, यानी कि पैरामीशियम के माउथ तक लेकर आता है. देन वी हैव बीज एंड हमिंग बर्ड्स. ये लोग क्या करते हैं, ये सक करते हैं नेक्टर को फ्रॉम द फ्लावर्स. Then we have infants of humans and many other animals. ये सब जो है वो अपनी मदर मिल्क के ऊपर फीड करते हैं. Then we have snakes such as pythons. ये क्या करते हैं, ये swallow कर लेते हैं एनिमल्स को जिनके ऊपर ये प्रे करते हैं, यानी कि ये जो स्नेक्स होते हैं जैसे कि पाइथन्स, ये अपने प्रेस को खाते हैं. देन वी हैव अ स्टारफिश. सो स्टारफिशेस क्या करती है, ये फीड करती है स्मॉल एनिमल्स पे एंड इट opens the shell and pushes its stomach out through its mouth to eat the soft animals. So बच्चों, स्टारफिशेस स्मॉल एनिमल्स खाती है, नहीं करती क्या है, ये अपने अंदर से अपना स्टमक जो है वो अपने मुंह के बाहर ले आती है एंड इन सॉफ्ट एनिमल्स को खा जाती है. सो आफ्टर ईटिंग द स्टमक गोज बैक इनटू द स्टारफिश बॉडी. और जैसे ही ये खा लिया जाता है, ये स्मॉल एनिमल्स खा लिए जाते हैं, सो स्टारफिश का स्टमक दोबारा से उसकी बॉडी के अंदर चला जाता है एंड फूड जो है वो धीरे धीरे करके डाइजेस्ट होता है. सो यहाँ पर स्टारफिश के केस के अंदर फूड इंजेस्ट किसने किया, स्टारफिश के स्टमक ने, एंड फूड को डाइजेस्ट भी किसने किया, स्टारफिश के स्टमक ने. So now students, here we have brush up session 1 and first we have complete the analogy. So first of all we have butterfly siphoning, housefly sponging. So हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, sponging.
Then students here we have B blank, हमको इस blank को fill करना है and lice क्या कर रही है, lice जो है वो blood पीती है, right? So bees क्या करती है, bees जो है वो nectar को suck करती है, so we are going to write sucking. Now students next we have what are the steps of nutrition involved in animals. So हम लोगों को steps लिखने हैं. So first step हमारे पास क्या है, first step we have ingestion. Then second step we have digestion. Then third step we have absorption. Fourth step we have assimilation. Fifth step we have egestion, right? So ये हमारे steps of nutrition है. So now students next we have the human digestive system. So अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम human digestive system को समझने वाले हैं. So the human digestive system is a group of organs that work together to break down the food we eat into nutrients that our bodies can use for energy, growth and repair. So now बच्चों ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है क्या, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स है, राइट? एंड ये सारे ऑर्गन्स जो है वो किस चीज के लिए काम कर रहे हैं, ये हमारे फूड को ब्रेक डाउन करते हैं सो दैट हमारे को, हमारी बॉडी को उन फूड से न्यूट्रिएंट्स मिले जिनको हम यूज कर सकते हैं एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए एंड रिपेयर के लिए. So the process of digestion starts from the mouth and ends at the anus. So बच्चों अब ये प्रोसेस ऑफ डाइजेशन जो है वो स्टार्ट कहाँ से होता है, बहुत लोगों को इस चीज में कंफ्यूजन होती है कि हमारा डाइजेशन जो है वो स्टमक से स्टार्ट होता है, बट नो, हमारा डाइजेशन माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है एंड वी आर गोइंग टू लर्न दिस कि माउथ में कैसे स्टार्ट हो जाता है. सो माउथ में डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है एंड एंड कहाँ पर होता है, एनस पे. सो अब हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे ऑर्गन्स भी होते हैं, जैसे कि हमारे पास है स्टमक, लिवर, पैनक्रियाज एंड इंटेस्टाइन. सो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, इनके पास प्राइमरी ऑर्गन्स होते हैं एंड एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं. सो अब ये प्राइमरी और एसेसरी दोनों ऑर्गन्स ही क्या करते हैं, साथ में मिलकर काम करते हैं, जिससे ये लोग फूड को ब्रेक डाउन करवा सकते हैं और उनके अंदर से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करवा सकते हैं. तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्राइमरी ऑर्गन्स की. So primary organs include mouth, जिसको हम बक्कल कैविटी भी बोलते हैं. देन हमारे पास होता है esophagus, stomach, small intestine, large intestine, rectum and anus. So हमारे प्राइमरी ऑर्गन्स में क्या है, माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस. सो अब ये जो हमारा प्राइमरी ऑर्गन है ये कॉन्टिन्यूअस पाथ है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस ट्यूब की तरह है, एक कॉइल ट्यूब की तरह है, जिसको हम लोग हमारा एलिमेंट्री कैनाल भी बोल सकते हैं या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी बोल सकते हैं. सो ये तो हमारे पास हो गए प्राइमरी ऑर्गन्स. अब हम बात करते हैं हमारे एसेसरी ऑर्गन्स की. सो एसेसरी ऑर्गन्स में हमारे पास क्या आता है, लिवर, salivary glands, gall bladder and pancreas. So अब ये accessory organs क्या करते हैं, ये crucial role play करते हैं, जिसमें ये क्या करते हैं, produce करते हैं, store करते हैं digestive juices को and enzymes को, जो कि help करता है breakdown of food में. So बच्चों इनके बीच में basic difference क्या है. So primary organs के अंदर food जो है वो travel कर रहा होता है एंड वहां पे फूड का ब्रेक डाउन हो रहा होता है. बट जो हमारे ये एसेसरी ऑर्गन्स है ये क्या करते हैं, ये हमारे डाइजेशन के प्रोसेस में हेल्प करते हैं. ये कुछ डाइजेस्टिव जूसेस सेक्रीट आउट करते हैं, कुछ डाइजेस्टिव जूसेस को स्टोर करते हैं, जो कि इन फूड के ब्रेक डाउन को और भी हेल्प करवाता है, और भी जल्दी करवाता है. सो एसेसरी ऑर्गन्स दे आर जस्ट हेल्पिंग इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन. एंड इफ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द प्राइमरी ऑर्गन्स, सो फूड इज एक्चुअली गेटिंग ब्रोकन डाउन इन दीज प्राइमरी ऑर्गन्स ओनली. नाउ नेक्स्ट वी हैव, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे माउथ या फिर हमारे बकल कैविटी की. सो माउथ क्या है, माउथ स्टार्टिंग पॉइंट है हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का या फिर हमारी एलिमेंट्री कैनाल का. एंड इस माउथ को हम लोग बहुत सारे फंक्शंस के लिए, बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमारा माउथ ब्रीदिंग करता है, बोलता है, खाता है. सो इनसाइड द माउथ हमारे पास बहुत सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स है. एंड व्हाट आर दीज इंपॉर्टेंट पार्ट्स, वी हैव टंग, टीथ एंड सलाइवरी ग्लैंड्स. सो हमारे पास ये तीन मेन चीजें हैं हमारे माउथ के अंदर, टंग, टीथ एंड सलाइवरी ग्लैंड. सो
अब जिस प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड, उसको क्या बोला जाता था? इंजेशन, राइट। सो अब होता क्या है, हमारा टंग, टीथ, सलाइवरी ग्लैंड, इन तीनों का अपना अपना फंक्शन है, अपना अपना रोल है। सो लेट्स सी अबाउट देम। सो सबसे पहले टीथ का काम क्या है? टीथ हमारे फूड को छोटे छोटे पीसेस के अंदर तोड़ देते हैं, राइट। एंड इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है? मैस्टिकेशन। सो मैस्टिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, हमारा फूड छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर टूट जाता है। देन द च्यूड फूड, यानी कि जो ये टूटा हुआ फूड है, अब इसको ये किसके साथ मिक्स होता है? सलाइवा के साथ। और ये सलाइवा आ कहां से रहा है? इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स। सो ना बच्चों, हमारे सलाइवा के अंदर ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है। सो एंजाइम्स क्या करते हैं? ये एंजाइम हमारे फूड के ब्रेक डाउन में हेल्प करता है। सो सलाइवा के अंदर एक एंजाइम है जिसका नाम क्या है? सलाइवरी एमाइलेज। एंड ये सलाइवरी एमाइलेज क्या करता है? ये ब्रेक डाउन करवाता है हमारे फूड के अंदर जो स्टार्च है इनटू सिंपल शुगर। सो इसलिए हम लोगों ने बोला था कि ब्रेक डाउन ऑफ फूड माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि आप लोग देखो हमारे माउथ के अंदर क्या है? सलाइवरी ग्लैंड, जो कि सलाइवा प्रोड्यूस कर रहा है। इस सलाइवा के अंदर है सलाइवरी अमाइलेज, जो कि क्या कर रहा है? हमारे फूड के अंदर जो स्टार्च है ना, उसको ब्रेक डाउन करवाता है सिंपल शुगर्स के अंदर। अब यहाँ पे हमने काम देख लिया टीथ का, हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स का। बचा कौन? टंग। सो टंग क्या करता है? टंग मिक्स करवाता है हमारे फूड को सलाइवा के साथ। एंड ऑल्सो टंग क्या करता है? पुश करवाता है हमारे फूड को ईसोफेगस, यानी कि फूड पाइप के अंदर। सो हम लोगों ने हमारे तीनों इंपॉर्टेंट पार्ट्स के बारे में पढ़ा, जो कि हमारे माउथ यानी कि हमारे बकल कैविटी के अंदर है। देन नेक्स्ट वी हैव टीथ एंड देयर फंक्शन। सो बच्चों, अब हम बात करते हैं टीथ की। सो ईच टीथ, ये कहां पर रूटेड होते हैं? सेपरेट सॉकेट में, जो कि हमारे गम्स के अंदर है। हमारा हर एक टीथ जो है वो हमारे गम्स के अंदर बहुत अच्छे से एम्बेडेड है, राइट। सो हमारे टीथ के डिफरेंट डिफरेंट शेप्स होते हैं। एंड ऑल्सो इन शेप्स के बेसिस के ऊपर ही इनके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस है, जिसकी वजह से ये फूड का ब्रेक डाउन करवाते हैं। सो हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ टीथ है हमारे माउथ के अंदर। फर्स्ट वी हैव इंसिजर्स। सो इंसिजर्स को बोला जाता है हमारे फ्रंट टीथ को। एंड ये फ्रंट टीथ क्या करते हैं? ये हमारे फूड को कट करने में हेल्प करते हैं। सो हमारे पास 4 इंसिजर्स होते हैं हर जॉ के अंदर, वेदर इट इज अपर जॉ और लोअर जॉ। हर जॉ के अंदर क्या है? 4 इंसिजर्स। देन वी हैव कैनाइंस। एंड कैनाइंस कैसे होते हैं? बहुत सारे शार्प होते हैं, राइट। सो इंसिजर्स के जस्ट साथ में हमको क्या दिखते हैं? हमारे ये शार्प टीथ, पॉइंटेड टीथ, जिनको हम लोग यूज करते हैं टीयर करने के लिए फूड के लिए, यानी कि जो भी हम लोग बहुत ज्यादा हार्ड फूड खाते हैं, हार्ड सब्सटेंस खाते हैं, उसको टीयर करने के लिए, फाड़ने के लिए हमको क्या चाहिए होते हैं? कैनाइंस चाहिए होते हैं। एंड हर जॉ के अंदर हमारे पास 2 कैनाइंस होते हैं। देन वी हैव प्रीमोलर्स। एंड प्रीमोलर्स कहाँ होते हैं? प्रीमोलर्स जो है वो बिहाइंड द कैनाइंस होते हैं। एंड इन प्रीमोलर्स का काम क्या होता है? ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं चूइंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ फूड के लिए। हम लोग फूड जो है वो यहाँ से चबाते हैं, साइड से चबाते हैं, राइट। सो इन साइड्स में हमारे पास क्या है? प्रीमोलर्स, जो कि चूइंग और ग्राइंडिंग ऑफ फूड के लिए हेल्प आ रहे हैं। एंड हर जॉ के अंदर हमारे पास 4 प्रीमोलर्स है। देन वी हैव मोलर्स। सो मोलर्स कहाँ होते हैं? ये हमारे बैक ऑफ माउथ में होते हैं। एंड मोलर्स किस चीज में हेल्प करते हैं? ये चूइंग और ग्राइंडिंग ऑफ फूड में हेल्प करते हैं। और हर जॉ में हमारे पास 6 मोलर्स होते हैं। देन बच्चों, हमारे पास है हैंड्स ऑन लर्निंग। हमारे पास यहाँ पर एक एक्टिविटी है। सो इसका एम क्या है? हमको स्टडी करना है एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन स्टार्ची फूड। सो हमारे पास जो स्टार्ची फूड होते हैं उनके ऊपर सलाइवा का एक्शन कैसे होने वाला है, सलाइवा कैसे उनके ऊपर काम करने वाला है, हम लोग ये देखेंगे। सो मटेरियल्स क्या क्या चाहिए हमको 2 टेस्ट ट्यूब चाहिए, 1 टीस्पून फुल ऑफ बॉइल्ड राइस चाहिए, वाटर चाहिए और आयोडीन सॉल्यूशन चाहिए। सो मेथड क्या रहेगा हमारा? हम 2 टेस्ट ट्यूब लेंगे, उनको लेबल करेंगे ए एंड बी। सो हर एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, ए टेस्ट ट्यूब में हम लोग क्या डालने वाले हैं? स्पून फुल ऑफ बॉइल्ड राइस। और टेस्ट ट्यूब बी के अंदर हम लोग लेने वाले हैं टीस्पून फुल ऑफ बॉइल्ड राइस आफ्टर च्यूइंग इट फॉर 3 to 5 मिनट्स। सो एक में हमारे पास सीधे बॉइल्ड राइस है, दूसरी टेस्ट ट्यूब में हमारे पास च्यूड बॉइल्ड राइस है, जिसको हमने हल्का सा चबाया हुआ है 3-4 मिनट के लिए। देन अब हम क्या करने वाले हैं? हम इन दोनों के अंदर ही 3 to 4 ml ऑफ वाटर डालने वाले हैं। एंड इसके बाद हम 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन डालेंगे दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर। सो नाउ बच्चों, ऑब्जर्वेशन क्या आएगा कि देयर इज चेंज इन कलर इन टेस्ट ट्यूब ए बट नॉट इन टेस्ट ट्यूब बी। अब हम लोग स्टार्च का टेस्ट कर रहे थे हमारे राइस के अंदर। सो हमने जैसे ही आयोडीन डाला वो ब्लू ब्लैक कलर का हो गया ए टेस्ट ट्यूब के अंदर, मतलब वहां पे स्टार्च प्रेजेंट है। बट बी टेस्ट ट्यूब में, जिसमें हमने च्यूड बॉइल्ड राइस लिया था, वो चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब वहां पे स्टार्च नहीं है। सो वहां पे स्टार्च क्यों नहीं है? सो बच्चों, यहाँ पे कंफ्यूजन क्या आता है कि हमारे माउथ के अंदर जो सलाइवा था
उसने क्या किया, उसने स्टार्च को सिंपल शुगर्स के अंदर ब्रेक डाउन कर दिया, क्योंकि हमारे सलाइवा के अंदर एक एंजाइम है सलाइवरी अमाइलेज जो कि कन्वर्ट कर देता है स्टार्च को सिंपल शुगर्स के अंदर। सो च्यूड राइस जो है वो ऑलरेडी टूटा हुआ है, हमारे स्टार्च जो है वो ऑलरेडी टूट गया है सलाइवा के एक्शन की वजह से, इसलिए वहां पर हमको नेगेटिव टेस्ट और कलर जो है वो देखने को मिला। ना बच्चों, हेयर वी हैव मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। तो ह्यूमंस के पास क्या होते हैं, 2 सेट्स ऑफ टीथ आते हैं उनके पूरे लाइफ टाइम के अंदर। सबसे पहले फर्स्ट सेट जो है वो कब इरप्ट हो जाते हैं, जब हम लोग छोटे छोटे बेबीज ही होते हैं, राइट। हमारे ऑलमोस्ट 6 to 8 मंथ्स में या फिर 1 ईयर्स के अंदर हमको हमारे टीथ जो है वो आते हुए दिखने लग जाते हैं। एंड इस तरीके के टीथ को हम लोग क्या बोलते हैं, मिल्क टीथ या फिर टेम्पररी टीथ। सो मिल्क टीथ कब तक लास्ट करते हैं, ये कब तक होते हैं हमारे पास, जब तक हम खाली 8 to 10 years ओल्ड ही होते हैं, हम 8 से 10 साल के होते हैं तब तक ही हमारे पास होते हैं। देन हमारे पास 20 मिल्क टीथ होते हैं एंड 10 जो है वो हर जॉ के अंदर होते हैं। अब इन मिल्क टीथ को कौन रिप्लेस कर देता है, इनको सेकंड सेट ऑफ टीथ रिप्लेस करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं परमानेंट टीथ। एंड ये परमानेंट सेट जो है इनके अंदर कितने टीथ्स होते हैं, 32 टीथ्स होते हैं, हर जॉ के अंदर हमको 16 टीथ्स जो है वो देखने के लिए मिलते हैं। सो नाउ हेयर वी हैव केयर ऑफ टीथ, हम लोग हमारी टीथ की केयर कैसे कर सकते हैं। सो हम लोगों ने अभी देखा कि टीथ का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारी लाइफ के अंदर। जब हम लोग फूड खाते हैं तो हमारा फूड जो है वो टूट ही किसकी वजह से पाता है, हमारे टीथ की वजह से, राइट। और जब हम खाना खाते हैं सो हमारे फूड का जो छोटा छोटा सा पार्ट है वो हमारे टीथ में जाकर फंस जाता है। सो कभी कभी क्या होता है कि ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं हमारे फूड के, हमारे टीथ के अंदर बहुत लंबे टाइम तक रह जाते हैं अगर हम उनको अच्छे से ब्रश नहीं करते हैं तो। सो बच्चों, कभी कभी क्या होता है कि छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स जो है वो हमारे टीथ के अंदर रह जाते हैं अगर हम अच्छे से ब्रश ना करें तो। अब बैक्टीरिया जो प्रेजेंट होता है हमारे माउथ के अंदर वो क्या करेगा, इन बचे हुए छोटे छोटे पार्टिकल्स के ऊपर जाएगा एंड वहां पर जाकर एसिड प्रोड्यूस करेगा। ये एसिड क्या करता है, ये एसिड हमारे टूथ एनेमल जो कि हमारे टीथ की कवरिंग होती है उसको जाकर डिस्ट्रॉय करने लग जाता है, जिसकी वजह से हमको हमारे माउथ के अंदर कैविटीज देखने को मिलती है या फिर होल्स देखने को मिलते हैं। एंड इसी पूरे प्रोसेस को बोला जाता है टूथ डिके। So now बच्चों, here we have thought shower 1. So find out and discuss which types of teeth are absent in first set of teeth and why. So now बच्चों, अब आपको ये चीज फाइंड आउट करनी है। हमने ये पढ़ा कि हमारे पास जो फर्स्ट सेट ऑफ टीथ होते हैं, मिल्क टीथ होते हैं, उसमें खाली 20 टीथ होते हैं। कौन सा सेट ऑफ टीथ जो है वो एब्सेंट होता है, वेदर इट इज प्रीमोलर्स, इट इज मोलर्स, केनाइंस, इंसिजर्स, क्या होता है जो कि हमारे इन फर्स्ट सेट ऑफ टीथ में एब्सेंट होता है। नाउ बच्चों, here we have tooth decay can be avoided by the following ways. अब हम लोगों ने ये देखा कि ये टूथ डिके जो है वो बहुत हार्मफुल है हमारे लिए। इनको अवॉइड कैसे कर सकते हैं, हम लोगों को हमारे टीथ को डेली ब्रश करना है एटलीस्ट ट्वाइस अ डे, राइट। एंड हर ब्रशिंग हमारी 2 मिनट्स की तो होनी चाहिए। देन हमको क्या करना है, हमको ड्राई ब्रिसल ब्रश जो है वो यूज करना है फर्स्ट 2 मिनट्स ऑफ क्लीनिंग के लिए। देन इसके बाद हम हमारे टीथ को क्या कर सकते हैं, फ्लॉस कर सकते हैं। जब भी हम खाना खा रहे हैं तो हम फ्लॉस कर सकते हैं खाना खाने के बाद, जिससे हमारे टीथ के ऊपर कोई भी खाना चिपका है तो वो निकल जाए। देन हमको ये अवॉइड करना है कि हम बहुत ज्यादा चॉकलेट्स ना खाए, बहुत ज्यादा मीठा ना खाए, सॉफ्ट ड्रिंक्स ना खाए। देन हमको हमारे डेंटिस्ट के पास जाना है किसी भी डेंटल प्रॉब्लम के लिए, जैसे कि अगर हमको टूथ एक फील हो रहा है या फिर ब्लीडिंग गम्स फील हो रहे हैं। देन बच्चों, नेक्स्ट वी हैव द टंग एंड इट्स फंक्शन। हम टंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। टंग क्या है, टंग एक फ्लैशी और मस्कुलर ऑर्गन है, राइट। एंड ये फ्लैशी और मस्कुलर ऑर्गन कहाँ पे अटैच्ड होता है, ये हमारी बकल कैविटी के एकदम लास्ट में अटैच होता है, एकदम नीचे फ्लोर पे अटैच होता है। अब टंग जो है उसको हम फ्रीली घुमा सकते हैं हमारे माउथ के अंदर, राइट। एंड वो हर डायरेक्शन में मूव हो सकती है। टंग के कुछ इंपॉर्टेंट रोल्स है एंड वो रोल्स क्या है, सबसे पहला टॉकिंग। सोचो बच्चों, अगर हमारे पास टंग नहीं होती हम लोग क्लियरली बोल ही नहीं पाते। देन वी हैव मिक्सिंग ऑफ फूड। हमारे फूड को सलाइवा के साथ कौन मिक्स करवाता है, हमारी टंग। देन हमारे पास है स्वैलोइंग। टंग क्या करती है, टंग हमारे च्यूड फूड को पुश डाउन कर देती है हमारे ईसोफेगस के अंदर। अब टंग का पुशिंग का भी फंक्शन है। देन वी हैव टेस्टिंग। टंग के ऊपर क्या होते हैं, कुछ टेस्ट बर्ड्स होते हैं और ये टेस्ट बर्ड्स जो है वो डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स और टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं, जैसे कि स्वीट, सॉल्टी, सार एंड बिटर। हियर वी हैव हैंड्स ऑन लर्निंग टू। यहाँ पे हमारा एम क्या है कि हमको आइडेंटिफाई करना है विच पार्ट्स ऑफ द टंग ये डिटेक्ट कर सकते हैं डिफरेंट टेस्ट को। मटेरियल्स क्या चाहिए हमको, शुगर सॉल्यूशन, कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन, लेमन जूस, जूस फ्रॉम क्रश्ड नीम लीफ और बिटर गॉर्ड।
नाउ वी हैव मेथड। सो मेथड क्या है, हम लोग ब्लाइंड फोल्ड करेंगे अपने क्लासमेट को एंड उससे पूछेंगे कि जैसे ही हम उसकी टंग पर कोई सब्सटेंस रखते हैं तो उसे कैसा टेस्ट आ रहा है। सो अब हम लोग यूज करेंगे क्लीन टूथपिक, जिससे हम लोग क्या कर सके, अप्लाई कर सके हर सैंपल को डिफरेंट डिफरेंट एरियाज ऑफ टंग पे। देन हम लोग यूज करेंगे न्यू टूथपिक हर सैंपल के लिए, एंड हम हमारे क्लासमेट से ये पूछेंगे कि आप क्या आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, कौन से एरियाज में आपको कौन सा टेस्ट जो है वो आ रहा है। सो कहीं पे स्वीट आएगा, कहीं पे सॉल्टी, कहीं पे बिटर, एंड इस तरह से हम लोग फाइंडिंग्स को रिकॉर्ड करेंगे। सो बच्चों रिजल्ट क्या आएगा कि स्वीट टेस्ट जो है ना वो हमको टिप ऑफ द टंग पे ही आ जाता है, सॉल्टी टेस्ट हमको साइड्स ऑफ द टंग पे जो है वो आता है, सार टेस्ट हमको साइड एंड बैक ऑफ द टंग पे आता है, एंड बिटर टेस्ट भी हमको बैक ऑफ द टंग पे आता है। सो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि हमको स्वीट टेस्ट जो है वो कहाँ पर ही दिख गया, हमको फ्रंट साइड पर ही दिख गया। देन सार टेस्ट हमारे पास इधर साइड्स पे हमको फील होगा। सॉल्टी टेस्ट जो है वो हमको कहाँ पे फील हो रहा है, हमको इस तरह से यहाँ पर फील हो रहा है। देन वी हैव बिटर टेस्ट जो कि हमको इस तरह से बैक पर फील होगा, एंड उमामी टेस्ट जो है वो हमको कहाँ पर फील होगा, हमको इस तरीके से हमारे हाफ ऑफ द टंग पर फील हो जाएगा। So now students, next we are going to start with esophagus, stomach and intestines. So from the mouth, the food is pushed down into the next organ called food pipe or esophagus. So now बच्चों हम लोगों ने ये पढ़ा कि लास्ट में टंग जो है वो क्या करती है, वो फूड को पुश डाउन कर देती है हमारे फूड पाइप यानी कि ईसोफेगस के अंदर, राइट। सो ईसोफेगस है क्या, ईसोफेगस एक मस्कुलर ट्यूब है जो कि कनेक्ट करता है हमारे माउथ को स्टमक से। सो ईसोफेगस क्या है, एक फूड पाइप है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि स्टमक और माउथ को कनेक्ट कर रहा है। So, when food passes into the esophagus, the opening of the windpipe gets closed. So now बच्चों होता क्या है, हमारा फूड पाइप है और उसके जस्ट बैक में हमारे पास क्या है, हमारे पास विंड पाइप भी है। सो अब खाना हमारे विंड पाइप में ना जाए, सो इसलिए क्या होता है, ईसोफेगस जो है जैसे ही फूड को स्वालो कर रहा होता है, सो उस टाइम पे हमारे पास एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपिग्लॉटिस। ये एपिग्लॉटिस क्या करता है, हमारे विंड पाइप को कवर कर देता है सो दैट हमारा खाना जो है वो खाली फूड पाइप के अंदर ही जाए। So now बच्चों here we have pick up more. So when we eat too quickly or talk while eating, food can sometimes enter our windpipe, leading to coughing, hiccups or choking sensation. So बच्चों आप लोगों ने भी इस चीज को नोटिस किया होगा कि जब हम बहुत जल्दी जल्दी खा रहे होते हैं या फिर हम खाना खाते हुए बोलते हैं, so कभी कभी क्या होता है, हमारा खाना जो है वो विंड पाइप में चला जाता है, जिसकी वजह से हमको खांसी आती है, हमको सांस नहीं आती है, राइट। इसलिए हमको बोला जाता है कि कभी भी खाना खाते टाइम बोलना नहीं चाहिए। So the windpipe which carries air to the lungs is next to the food pipe only. To prevent food from going into the windpipe, a flap-like valve called epiglottis closes it off during swallowing and guides the food into the food pipe. So now बच्चों विंड पाइप क्या है, विंड पाइप एयर को कैरी कर लेकर जाता है लंग्स के पास। अब ये फूड पाइप के जस्ट साइड में ही प्रेजेंट होता है। अब होता क्या है कि खाना खाते टाइम हमारा खाना विंड पाइप में ना जाए, उसके लिए हमारे पास एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है, एक फ्लैप लाइक कवरिंग है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपिग्लॉटिस। एंड जब हम लोग स्वालो कर रहे होते हैं, हमारे खाने को सटक रहे होते हैं, उस टाइम पे क्या होता है, ये फ्लैप हमारे विंड पाइप को बंद कर देता है एंड हमारा खाना फूड पाइप के अंदर ही जाता है। सो नाउ बच्चों नेक्स्ट वी हैव स्टमक। सो स्टमक क्या है, स्टमक एक मस्कुलर जे शेप्ड है, स्टमक का शेप कैसा है, जे शेप्ड है, एंड ये थिक वॉल्ड बैग है, इसकी वॉल्स भी क्या होती है, काफी ज्यादा थिक होती है। स्टमक हमारे एलिमेंट्री कैनाल का सबसे वाइडेस्ट पार्ट बनाता है, सबसे चौड़ा पार्ट बनाता है। अब स्टमक रिसीव करता है फूड को अपने एक एंड से एंड ओपन करता है अपने आप को स्मॉल इंटेस्टाइन में अनदर एंड से। बच्चों अब होता क्या है कि हमारे स्टमक का जो टॉप पार्ट है वहां पर फूड रिसीव होता है एंड हमारे स्टमक का जो एंडिंग पार्ट है वहां से फूड जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाता है। अब हमारी जो स्टमक की लाइनिंग है वो तीन चीजों को सेक्रीट करती है एंड वो क्या है, हमारे पास है म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस। बच्चों म्यूकस क्या करता है, हमारी लाइनिंग ऑफ स्टमक को प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि सोचो हमारे पेट के अंदर एसिड है तो हमें जलन क्यों नहीं हो रही, क्योंकि हमारे म्यूकस ने क्या कर रहा है, हमारी लाइनिंग को प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है उस एसिड से।
देन अब ये एसिड चाहिए क्यों हमको, हमारी बॉडी के अंदर एसिड क्यों है, ताकि हमारे स्टमक के अंदर जो एसिड है वो हमारे फूड के अंदर आने वाले किसी भी बैक्टीरिया को मार सकता है। देन इसके बाद बच्चों इस एसिड का एक और इंपॉर्टेंट काम होता है, एंड वो क्या है कि एक एसिडिक मीडियम बना देता है। एंड ये एसिडिक मीडियम क्यों चाहिए हमारे स्टमक के अंदर, क्योंकि जिन डाइजेस्टिव जूसेस के बारे में हमने पढ़ा था ना, वो क्या करते हैं, वो ब्रेक डाउन करवा देते हैं प्रोटीन को सिंपलर सब्सटेंसेस में। और इस डाइजेस्टिव जूसेस में हमारे पास कौन होता है, हमारे पास होता है पेप्सिन। सो पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन्स को सिंपलर सब्सटेंसेस में। और वो कब ब्रेक डाउन कर सकता है, जब उसको एसिडिक मीडियम मिलेगा। सो इसलिए क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इंपॉर्टेंट है। So now बच्चों, after digestion in the stomach, the semi-digested food called the chyme passes into the small intestine. So बच्चों, अब जो ये फूड हमारे स्टमक के अंदर डाइजेस्ट हुआ है, क्या ये पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो गया है, नहीं, ये सेमी डाइजेस्टेड फूड है और इसको क्या बोला जाता है, काइम। अब ये पूरी तरीके से डाइजेस्ट होने के लिए कहाँ भेजा जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। सो बच्चों यहाँ पे हमारे पास है पिकअप मोर सेशन। सो इन 1822 Alexis Saint Martin was injured by a shotgun, leaving a hole in his stomach. Dr. William Beaumont treated him but could not close the hole completely. This allowed Beaumont to observe the inside of the stomach. He discovered that the stomach churns food and secretes a fluid that helps to digest it. He also found that stomach releases food into the intestine only after digestion is complete. So बच्चों यहाँ पे हमारे पास कौन है, सेंट मार्टिन। इनको एक बार गोली मारी गई थी जिसकी वजह से इनके स्टमक में ना एक होल हो गया था। अब डॉक्टर विलियम ने इनको ट्रीट तो किया था, बट वो इनके स्टमक के होल को कंप्लीटली बंद नहीं कर पाए थे, जिसकी वजह से हमारे जो मार्टिन है और हमारे जो ब्यूमोंट है, इन लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया कि हमारा स्टमक जो है वो फूड को चर्न करता है, यानी किस तरीके से घुमाता है। इसके बाद वो क्या करता है, वो एक फ्लूइड रिलीज करता है और ये फ्लूइड हमारे फूड को तोड़ने में, उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। इसके बाद क्या होता है, स्टमक हमारे इस फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन में कब भेजता है, जब वो इसको पूरी तरीके से डाइजेस्ट कर देता है, यानी कि जितना वो डाइजेस्ट कर सकता है उतना डाइजेस्ट जब वो कर देता है, उसके बाद ही वो इसको स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजता है। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास क्या है, लिवर। सो लिवर एक रेडिश ब्राउन ग्लैंड है जो कि हमारे अपर राइट पार्ट में होता है, हमारे एब्डोमेन के। एंड ये लिवर हमारा लार्जेस्ट ग्लैंड है। सो लिवर जो है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है डाइजेशन के अंदर। लिवर क्या प्रोड्यूस करता है, बाइल। सो ये बाइल किस चीज के लिए जरूरी है, ये ब्रेक डाउन ऑफ फैट के लिए जरूरी है। सो बाइल, जो बाइल प्रोड्यूस करता है लिवर, ये बाइल स्टोर भी होता है। एंड कहाँ पर स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर में। सो बाइल प्रोड्यूस कौन कर रहा है, लिवर। बाइल को स्टोर कौन कर रहा है, गॉल ब्लैडर। एंड बाइल की जरूरत क्या है, बाइल क्या करता है कि ये हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। डाइजेशन में किसको ब्रेक डाउन कर रहा है, सो ये हमारे फैट्स को ब्रेक डाउन करता है। हमारे फूड के अंदर जो भी फैट्स होते हैं उसको ब्रेक डाउन कौन करता है, हमारा ये बाइल जूस। एंड ये स्टोर कहां पर होता है, बाइल जूस, गॉल ब्लैडर में। नाउ बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है पैनक्रियास। So pancreas is a large cream colored gland situated just below the stomach. So pancreas कैसा है, pancreas बड़ा ग्लैंड है, क्रीम कलर का है, जो कि हमारे स्टमक के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है। सो अब पैनक्रियास का काम क्या है, ये पैनक्रियाटिक जूसेस रिलीज करता है। एंड ये पैनक्रियाटिक जूसेस जो है वो हर चीज का डाइजेशन करवाते हैं, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स का भी, फैट्स का भी एंड प्रोटीन्स का भी। सो अब ये जूस जो है वो ब्रेक डाउन कर देता है इन न्यूट्रिएंट्स को सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में, जिसको हमारी बॉडी बहुत इजीली एब्जॉर्ब कर सकती है। सो पैनक्रियाटिक जूस क्या करते हैं, वो कन्वर्ट कर देते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को सिंपल शुगर्स में, जो कि क्या होता है, ग्लूकोज, फैट्स को फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में, एंड प्रोटीन्स को अमाइनो एसिड्स में। सो हमारे न्यूट्रिएंट्स का जो सिंपलर फॉर्म है वो क्या है, ग्लूकोज, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल्स और अमाइनो एसिड्स। सो नाउ बच्चों हियर वी हैव पिक अप मोर। सो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो कैसा होता है, वो बहुत ज्यादा टाइटली कॉइल्ड होता है, बहुत ज्यादा घुचुड़ मुचुड़ सा होता है, जिससे वो बहुत इजीली हमारी बॉडी के अंदर फिट हो जाता है। इवन दो ये जो है वो बहुत बड़ा होता है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो बहुत बड़ी ट्यूब है, बट इस कॉइलिंग की वजह से क्या होता है, ये हमारे एब्डोमेन के अंदर बहुत कम स्पेस लेता है। एंड इस कॉइलिंग की वजह से हमारा डाइजेशन जो है वो भी बहुत अच्छे से हो पाता है, जिसकी वजह से हमारे न्यूट्रिएंट्स को ज्यादा सरफेस मिलता है, यानी न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी के अंदर इजीली एब्जॉर्ब हो सकते हैं।
ना बच्चों अब हम बात करने वाले हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की। सो जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है ये हाईली कॉइल्ड ट्यूब है। अब ये हाईली कॉइल्ड है, छोटी सी देखने में लगती है तो लोगों को क्या लगता है कि ये छोटी सी होगी, बट एक्चुअल में कितनी बड़ी होती है, 7.5 मीटर्स लॉन्ग है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन ही ऐसी जगह है जहां पर ज्यादा से ज्यादा डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो है वो हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन को बाइल मिलता है, बाइल कौन सेक्रीट करता है, लिवर। स्मॉल इंटेस्टाइन को पैनक्रियाटिक जूस मिलते हैं जो कि कौन सेक्रीट करता है, पैनक्रियास। लिवर और पैनक्रियास अपने अपने सेक्रीशन स्मॉल इंटेस्टाइन को देते हैं, जिसकी वजह से डाइजेशन जो है वो और अच्छे से हो पाता है। वॉल ऑफ इंटेस्टाइन भी क्या करते हैं, वो भी कुछ डाइजेस्टिव जूसेस को रिलीज करते हैं। लोअर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा फाइनल डाइजेशन जो है वो पूरी तरीके से हो जाता है, एंड यहाँ पे सारे के सारे फूड कंपोनेंट्स जो है वो सिंपलर सब्सटेंसेस के अंदर ब्रेक डाउन हो जाते हैं, जैसे कि ग्लूकोज में, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में, अमाइनो एसिड्स में। एंड अब ये सिंपलर फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो है वो हमारी बॉडी के अंदर, हमारी ब्लड स्ट्रीम के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। So now student, here we have thought shower. So Puneet frequently eats outside food and often skip meals when he is busy. One evening, after not eating anything the entire day, he developed acidity in his stomach. Why do you think Puneet experienced acidity after skipping meals and frequently eating outside food? So बच्चों हम सबको पता है हमारे स्टमक के अंदर क्या प्रोड्यूस होता है, एसिड। ये एसिड जो है वो टाइमली प्रोड्यूस होता रहता है हमारे स्टमक के अंदर, सो दैट जैसे ही फूड आए उसका ब्रेक डाउन जो है वो हो सके, उसके बैक्टीरियाज को किल किया जा सके। बट पुनीत क्या कर रहा है, पुनीत अपने मील्स को स्किप कर रहा है। बट वो मील्स को स्किप कर रहा है इसका मतलब ये थोड़ी कि उसके स्टमक में एसिड बनना बंद हो जाएगा। एसिड बन रहा है बट एसिड को खाना नहीं मिल रहा फूड ब्रेक डाउन के लिए, जिसकी वजह से पुनीत को जो है वो एसिडिटी फील हो रही है। नाउ बच्चों वी हैव एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। हम लोगों ने देखा हमारा डाइजेशन जो है वो कंप्लीट हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, एंड उसके बाद हमारे जो फूड है वो क्या होते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं। अब ये एब्जॉर्ब कैसे होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ना फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, ऐसे प्रोजेक्शंस होते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, विलाई। अब ये विलाइज जो है वो प्रेजेंट होते हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग में। विलाई क्या करते हैं, वो सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं हमारे एब्जॉर्प्शन के लिए। विलाइज का काम क्या है, वो हमारे एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। हर विलाई के अंदर हमको क्या देखने को मिलता है, हमको ब्लड वेसल्स देखने को मिलती है। हर विलाई क्या कर रही है, उनके पास ब्लड वेसल्स है। फूड एब्जॉर्ब होगा हमारे विलाई के अंदर एंड डायरेक्टली कहाँ चला जाएगा, हमारी ब्लड के अंदर, थ्रू दीज ब्लड वेसल्स ओनली। Now substances are absorbed in the blood present in these fine blood vessels. The chyme now passes into the large intestine where only water and minerals are left to be absorbed. So now बच्चों जैसे ये विलाई सारे के सारे फूड को एब्जॉर्ब कर लेती है, तो अब हमारे काइम को, काइम क्या होता था हमारा ये सेमी डाइजेस्टेड फूड, इस सेमी डाइजेस्टेड फूड को अब कहाँ भेजा जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। एंड लार्ज इंटेस्टाइन में खाली किस चीज का एब्जॉर्प्शन होता है, वाटर का एंड मिनरल्स का। अब हम लोग देखते हैं लार्ज इंटेस्टाइन को। undigested food enters the large intestine from small intestine. Small intestine से food कहाँ पर आया है, large intestine में। And large intestine कैसा है, ये wider है, ये चौड़ा है and छोटा है हमारे small intestine से। large intestine की लेंथ खाली 1.5 मीटर होती है, but small intestine की कितनी थी, 7.5 मीटर। large intestine का काम क्या है कि ये खाली water को absorb करता है और necessary salts को absorb करता है हमारे undigested food से। ड्यू टू दिस प्रोसेस अनडाइजेस्टेड फूड जो है, अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ फूड जो है वो पूरी तरीके से ड्राई हो चुका होता है एंड ऑलमोस्ट सेमी सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। बच्चों खुद सोचो, जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड है अगर उससे हम लोग पानी निकाल लेंगे, सारे मिनरल्स निकाल लेंगे, तो वो तो ड्राई ही हो जाएगा ना, वो सेमी सॉलिड स्टेट में ही आ जाएगा। अब इसी पार्ट ऑफ फूड को क्या बोला जाता है, फीसेस। इट इज फाइनली रिमूव थ्रू द एनस बाय द प्रोसेस कॉल्ड ईजेशन। इस सेमी सॉलिड वेस्टेड फूड को ही क्या बोला जाता है, फीसेस। एंड इसको फाइनली हमारी बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है एनस के थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड ईजेशन। सो नाउ बच्चों हियर वी हैव पिक अप मोर। फ्रीक्वेंट वाटरी स्टूल्स, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, डायरिया। बच्चों होता क्या है कि हम लोगों को कभी कभी ना बहुत ज्यादा वाटरी स्टूल्स आ जाते हैं एंड इस कंडीशन को क्या बोला जाता है, डायरिया। ये डायरिया होता कब है, जब हमको कुछ इन्फेक्शन हो जाता है, फूड पॉइजनिंग हो जाती है या इनडाइजेशन हो जाता है, हमारी बॉडी फूड को डाइजेस्ट नहीं कर पा रही होती है। ये बहुत कॉमन इशू है एंड ये मेजरली किसके अंदर देखा जाता है, बच्चों के अंदर। अब ये कॉमन इशू तो है बट ये बहुत ज्यादा डेंजरस भी हो सकता है, क्योंकि हमारी बॉडी से जितना ज्यादा पानी निकलता जाएगा हमारी बॉडी डिहाइड्रेट होती जाएगी एंड हमारी बॉडी जो है वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगी।
अब इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, हमको बहुत सारा बॉइल्ड पानी पीना पड़ता है। सो ड्रिंक प्लेंटी ऑफ बॉइल्ड एंड कूल्ड वाटर, एंड ऑल्सो इस पानी के अंदर ना हम थोड़ा सा शुगर एंड सॉल्ट मिक्स कर देते हैं। एंड इस पानी, शुगर एंड सॉल्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। एंड इस ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन यानी कि ORS को ही यूज किया जाता है डायरिया ट्रीट करने के लिए। Now students, next we have assimilation of food. So अब होता क्या है कि ये एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करे जाते हैं। एंड इनको ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा होता है, हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर जो ब्लड है वो इनको ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स तक, क्योंकि खाना जो है वो खाली हमारे स्टमक को थोड़ी ना चाहिए या हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन को थोड़ी ना चाहिए। ये सारा फूड जो है, ये एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस जो है वो हमारी बॉडी के हर सेल को चाहिए। एंड ये कैसे मिल पाएगा, ये ब्लड के थ्रू ही मिल पाएगा, क्योंकि ब्लड जो है वो हमारी बॉडी के अंदर हर सेल के पास तक पहुंच पाता है। सो नाउ बच्चों, blood vessels to different organs of the body where they use to build complex substance such as proteins for the growth, repair of body tissue. This stage is final stage in the process of digestion. It is known as assimilation. Finally, glucose breaks down with the help of oxygen into carbon dioxide and water, and energy is released. The food that remains undigested and unabsorbed enters the large intestine. So now बच्चों, assimilation of food में हमको बताया क्या जा रहा है, यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि अब जो ये एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस है वो क्या होते हैं, वो हमारे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स तक ट्रांसपोर्ट हो पाते हैं, बट बाय द हेल्प ऑफ व्हाट, बाय द हेल्प ऑफ आवर ब्लड वेसल्स। एंड ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के पास जाकर क्या होते हैं, डिफरेंट सेल्स इनको यूज करते हैं सच दैट कि वो लोग इन एब्जॉर्ब फूड में से प्रोटीन्स बिल्ड करते हैं, जिसको वो ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए यूज कर सकते हैं। सो हम लोग ये बोल सकते हैं कि हमारा जो एसिमिलेशन है ये हमारा फाइनल स्टेज होता है डाइजेशन का। एंड इसी फाइनल स्टेज ऑफ डाइजेशन को क्या बोला जाता है, एसिमिलेशन। सो फाइनली अब यहाँ पर होता क्या है, ऑल्सो जब ये ग्लूकोज हमारे सेल्स तक पहुंच जाता है, सो ग्लूकोज ऑक्सीजन की हेल्प से क्या करता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, वाटर वेपर रिलीज करते हैं, एंड साथ में एनर्जी भी बनाते हैं। सो इस तरह से हमको हमारे फूड से क्या मिलती है, एनर्जी। सो अब जो ग्लूकोज हमारी बॉडी ने एब्जॉर्ब किया है, हमारे सेल्स ने एब्जॉर्ब किया है, वो जैसे ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, सो वो एनर्जी लिबरेट करेगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। सो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये हमारी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। एंड बच्चों, जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल होता है वो सब कहाँ चला जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। सो नाउ we are going to see nutrition in ruminants. So human beings जो है वो डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं सेल्यूलोज को, जो कि प्रेजेंट होते हैं ग्रास एंड लीव्स में। बट अगर हम लोग बात करें एनिमल्स जैसे कि काउज, डियर एंड शीप, ये सारे लोग क्या कर सकते हैं, डाइजेस्ट कर सकते हैं सेल्यूलोज को विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया, जो कि इनके डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रेजेंट होता है। सो अब इनके यानी कि जो हमारे ये ruminants होते हैं, इनके डाइजेस्टिव सिस्टम को डिवाइड किया गया है 4 चैम्बर्स के अंदर, rumen, रेटिकुलम, ओमेसम एंड एबोमेसम। सो नाउ बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा कि ये जितने भी हमारे काउज, डियर्स एंड शीप होते हैं, ये लोग ग्रास एंड लीव्स खाते रहते हैं, बट हम लोग जैसे वो खाएंगे हमको वॉमिट हो जाएगा, राइट, हम लोग उस चीज को खा ही नहीं पाएंगे। सो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ग्रास एंड लीव्स के अंदर सेल्यूलोज प्रेजेंट है। सो इस सेल्यूलोज को ह्यूमन बींग्स डाइजेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इनके पास वो बैक्टीरिया नहीं है जो कि इसको डाइजेस्ट करवाएगा। बट काउ, शीप, डियर, ये सब क्या कर सकते हैं, ये सब इन ग्रास लीव्स के सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है इनके डाइजेस्टिव सिस्टम में। सो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम इनके डाइजेस्टिव सिस्टम को देखने वाले हैं। सो इनके पास प्रेजेंट होता है rumen, रेटिकुलम, ओमेसम एंड एबोमेसम। सो नाउ बच्चों, सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि फूड को जो है वो च्यू किया जाता है एंड देन उसको स्वैलो किया जाता है, और अब वो चला जाता है इनके स्टमक के फर्स्ट पार्ट में, जो कि क्या है, rumen। सो नाउ बच्चों, आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हो कि rumen जो है वो ये रहा हमारे पास। सो फूड सबसे पहले च्यू होके, स्वैलो होके कहाँ जाता है, rumen में। सो यहाँ पर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं rumen में। वी कैन सी अ लॉट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि इन फूड को ब्रेक डाउन करवाते हैं। सो अब ये पार्शली डाइजेस्टेड फूड जो है इसको क्या बोला जाता है, कर्ड। सो ह्यूमंस के केस में पार्शली डाइजेस्टेड फूड को क्या बोला जाता था, काइम, बट इनके केस में क्या बोला जा रहा है, कर्ड। सो ये हाफ डाइजेस्टेड फूड जो है वो सेकंड मस्कुलर चैम्बर में जाता है, जिसका नाम क्या है, रेटिकुलम। सो आप लोग देख सकते हो ये रहा हमारे पास रेटिकुलम। सो ये rumen से अब कहाँ पास हो जाता है, ये पास होता है रेटिकुलम में।
सो फ्रॉम रेटिकुलम द फूड इज सेंट बैक टू द माउथ टू बी च्यूड अगेन। अब बच्चों होता क्या है, अब रेटिकुलम से दोबारा इस फूड को भेजा जाता है माउथ के अंदर च्यू करने के लिए। तभी आप लोग देखते हो कि गाय भैंस क्या करती हैं, वो कॉन्टिन्यूसली उनका मुंह चलता रहता है, इवन दो चाहे उनको खाने के लिए कुछ ना दिया गया हो, बट उनका मुंह जो है वो फिर भी चल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि रेटिकुलम इनको दोबारा से खाना भेज रहा है कि इसको दोबारा से जो है वो च्यू करो। So chewing of cud is called rumination and such animals are called ruminants. So बच्चों chewing of cud यानी कि हमारे semi digested food को ही दोबारा से chew करना, उसी को क्या बोला जाता है, rumination। and जो animals rumination perform कर रहे हैं उनको क्या बोला जाता है, ruminants। So now the rechewed food is swallowed again. This time it bypasses the first two chambers, rumen and reticulum, and enters the third chamber called omasum। अब बच्चों इस rechewed food को क्या किया जाता है, दोबारा से कहाँ भेजा जाता है, इसको दोबारा से स्वालो किया जाता है, और अब ये खाली बाईपास होता है फर्स्ट टू चैम्बर से यानी कि र्यूमन और रेटिकुलम से, और दोबारा से अब ये कहां पर एंटर करता है, ये थर्ड चैम्बर में जाता है जिसका नाम है ओमेसम। सो हियर इट इज अगेन ब्रोकन डाउन इनटू मोर स्मॉलर पीसेस, और ओमेसम में क्या हो रहा है, यहाँ पर दोबारा से इसको ब्रेक डाउन किया जा रहा है और छोटे पीसेस में। सो फाइनली इट एंटर्स द फोर्थ चैम्बर कॉल्ड एबोमेसम वेयर एंजाइम्स एक्ट अपॉन इट एंड डाइजेशन इज कंप्लीटेड। सो अब होता क्या है, फाइनली ये फूड जाता है फोर्थ चैम्बर के अंदर जिसको बोला जाता है एबोमेसम, एंड यहाँ पर एंजाइम्स जो है वो इस फूड के ऊपर वर्क करते हैं सो दैट ये जो है वो पूरी तरीके से ब्रेक डाउन हो जाए। The food then travels from the small and large intestine where the water and nutrients are absorbed and the remains are sent out of the body as waste। and इसके बाद ये फूड कहाँ जाता है, small and large intestine में, जहां पर water और nutrients को absorb किया जाता है and जितना भी remains होता है उसको body से बाहर निकाल दिया जाता है। so आपने देखा इन ruminants के अंदर हो क्या रहा है कि सबसे पहले फूड जो है वो कहाँ पर जा रहा है, वो rumen में जा रहा है, फिर वहां से रेटिकुलम में जा रहा है, रेटिकुलम में फिर से, रेटिकुलम के बाद फिर से माउथ में आ रहा है ब्रेक डाउन होने के लिए, फिर दोबारा से ह्यूमन रेटिकुलम होते हुए वो ओमेसम में जा रहा है, वहां पे ब्रेक डाउन हो रहा है, फिर फाइनली वो ब्रेक डाउन होने के लिए एबोमेसम में जा रहा है। तो इतने सारे स्टेजेस के थ्रू ये जाता है, सो तभी ये लोग क्या कर सकते हैं, सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं। नाउ बच्चों हमको यहाँ पर बोला गया कि नेहा ऑब्जर्व दैट कैटल डू नॉट च्यू देयर फूड थॉरली इन वन गो, इंस्टेड दे ऑफन च्यू देयर फूड मल्टीपल टाइम्स। व्हाई डू कैटल नीड टू च्यू देयर फूड मल्टीपल टाइम्स इंस्टेड ऑफ च्यूइंग इट थॉरली इन वन गो? हाउ डज दिस प्रोसेस हेल्प देम इन डाइजेशन? सो बच्चों आप लोगों ने ये चीज देखी होगी है ना कि जब भी हम लोग काओ को खाना देते हैं सो वो उसको अच्छे से च्यू नहीं करते, वो उसको फटा हल्का सा च्यू करके सटक लेते हैं, देन उसके बाद जब उनको सारा खाना खिला दिया जाता है वो फिर उसके बाद दोबारा च्यू करना स्टार्ट कर देते हैं। तो अभी हमने इस प्रोसेस को समझा कि र्यूमन रेटिकुलम से दोबारा वो फूड कहाँ आ जाता है, माउथ में आ जाता है। बट ये प्रोसेस कैसे डाइजेशन में हेल्प कर रहा है? सो इस प्रोसेस के थ्रू हो क्या रहा है कि डाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस भी हो पा रहा है, यानी कि जो सेल्यूलोज इतना कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है वो भी डाइजेस्ट हो पा रहा है क्योंकि ये लोग बार बार क्या कर रहे हैं, उसको च्यू कर रहे हैं। सो अब इस वजह से यहाँ पर इनको डाइजेशन में बहुत ज्यादा हेल्प होती है। Now students, next we have nutrition in amoeba. So amoeba क्या है, amoeba एक single celled organism है and ये usually हमको pond water में ही मिलता है। So unlike most organisms, amoeba does not have fixed shape. It constantly changes it from move and capture food. So बच्चों अब अम्बीबा का कोई भी फिक्स शेप नहीं होता है, अम्बीबा अपनी पोजीशन को, अपनी शेप को बार बार चेंज करता रहता है। एंड ये चेंज क्यों करता है, ये डिपेंड करता है कि इसका फूड जो है वो कहाँ पे, ये उसको पकड़ने के लिए अपने शेप्स को चेंज करता है। सो अम्बीबा यूज किसका करता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसको बोला जाता है सूडोपोडिया या फिर फॉल्स फीट भी। सो बच्चों ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हमने एक बार स्मॉल इंटेस्टाइन में पढ़ा था जिसका नाम क्या था, विलाय, एंड वो फूड को एब्जॉर्ब करवाने में हेल्प कर रहा था। बट इन केस ऑफ अमीबा ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को बोला जाता है सूडोपोडिया, जो कि फूड को कैच करने में हेल्प करते हैं। So when amoeba detects food, it extends its pseudopodia around the food particle। अब बच्चों जैसे ही अमीबा क्या करता है, किसी फूड को डिटेक्ट कर लेता है तो वो अपने सूडोपोडियस को ना उस फूड की तरफ इस तरीके से फैलाने लग जाता है, एंड इसके बाद वो उस फूड को कैप्चर करके एक छोटा सा क्या बना लेता है, पैक सा बना लेता है। सो इसको क्या बोला जाता है, पॉकेट या फिर फूड वैक्यूल। और इसी फूड वैक्यूल के अंदर अमीबा क्या करता है, वो सेक्रीट करता है डाइजेस्टिव जूसेस को, जो कि अब इस फूड को ब्रेक डाउन कर लेते हैं सिंपलर सब्सटेंसेस में और डाइजेस्टेबल सब्सटेंसेस में। नाउ डाइजेशन जैसे जैसे होता जाता है, सो ये न्यूट्रिएंट्स जो है वो अब एब्जॉर्ब हो जाते हैं अमीबा के साइटोप्लाज्म के अंदर, और इन न्यूट्रिएंट्स को यूज किया जाता है बहुत सारे वेरियस पर्पसेस के लिए, जैसे कि ग्रोथ, एनर्जी, सेल मेंटेनेंस। अनडाइजेस्टेड रिमेनेंट्स ऑफ फूड इवेंचुअली आर एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम द सेल थ्रू द सेल मेम्ब्रेन।
सो ना बच्चों, अब यहाँ पर हमको सबसे पहले बताया क्या गया, हम लोग इस पिक्चर के थ्रू देखते हैं। सो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि एक फूड पार्टिकल है और इस फूड पार्टिकल को ये हमारे सूडोपोडियाज ने क्या किया है, इसको ट्रैप कर लिया है। सो इसको ट्रैप करने के बाद इन्होंने क्या बनाया, एक पॉकेट, जिसको क्या बोला जा रहा है, फूड वैक्यूल। एंड अब अमीबा की बॉडी से सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स इस फूड वैक्यूल के अंदर आएंगे एंड इस फूड को ब्रेक डाउन करेंगे। देन इसके बाद यहाँ से जो फूड के अंदर जितने भी डाइजेस्टेड मटेरियल्स है वो सब दोबारा से क्या होगा, अमीबा की बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा एंड जो भी रिमेन्स है वो सब बॉडी अमीबा के सेल मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर निकल जाएगा। सो नाउ बच्चों, द नेम अमीबा ये डिराइव हुआ गया है एक ग्रीक वर्ड से जिसका नाम है अम्बोइबे, विच मीन्स टू चेंज, जिसका मतलब ही क्या होता है, चेंज। प्रायर टू दैट अमीबा को रेफर किया जाता था एज प्रोटियस एनिमिकुलेट। प्रोटियस कौन है, ग्रीक गॉड थे जो कि हर चीज की शेप जो है वो चेंज कर सकते थे। सो नाउ बच्चों, हियर वी हैव रैप अप। सो प्लांट्स जो है वो अपना खाना खुद प्रोड्यूस करते हैं, वेयर एनिमल्स क्या करते हैं, वो प्लांट्स या फिर एनिमल्स पर डिपेंडेंट होते हैं। फूड जो है वो हमको एनर्जी प्रोवाइड करवाता है, नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाता है। फूड कंपोनेंट में हमारे पास है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। एनिमल्स के डिफरेंट डिफरेंट फीडिंग मेथड्स है, राइट, जैसे कि स्क्रैपिंग, च्यूइंग, कैप्चरिंग एंड सिफोनिंग। नाउ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट कहाँ से होता है, माउथ से, एंड फूड जो है वो च्यूड होता है, मिक्स्ड होता है सलाइवा के साथ। ईसोफेगस क्या करता है, वो फूड को मूव करवाता है स्टमक के अंदर, जहां पर ये फूड एसिड्स और डाइजेस्टिव जूसेस के साथ मिलकर ब्रेक डाउन हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन कंटिन्यू होती है एंड एब्जॉर्ब हो जाता है ये फूड विलाई के थ्रू। लार्ज इंटेस्टाइन में खाली वाटर एंड सॉल्ट ही एब्जॉर्ब होता है एंड इसके थ्रू, इसके बाद क्या होता है, जितना भी अनडाइजेस्टेड और वेस्ट मटेरियल होता है वो एनस के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाता है। सो डाइजेशन का मतलब क्या होता है कि हम यहाँ पर फूड को ब्रेक डाउन करते हैं सिंपलर फॉर्म्स में, और एब्जॉर्प्शन जो है वो हो पाता है न्यूट्रिएंट्स का ब्लड स्ट्रीम के अंदर, और इजेशन जो है उसका मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ वेस्ट। सो रूमिनेंट्स जैसे कि काउज, ये सब क्या करते हैं, ये ग्रास को च्यू करते हैं, देन इसको स्टोर करते हैं रूमन में, देन इसको दोबारा से रीच्यू करते हैं। और अमीबा यूज करता है सूडोपोडिया का, जिससे वो अपने फूड को कैप्चर कर सकता है और उसको डाइजेस्ट कर सकता है फूड वैक्यूल के अंदर ही। So now students, on the basis of the chapter, you have this exercise over here in which you have few questions and then you have prescribed questions as well. So I want you all to complete this exercise and this completes our chapter. I hope आप सब लोगों को ये chapter अच्छा लगा होगा and समझ आया होगा. Now I'm going to meet you in the next class. Till then, take care. Bye bye.